السلام علیکم ناظرین، ٹائمز 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ مسلسل کام راشن کی تقسیم کا اور پکے ہوئے کھانے کی تقسیم کا کام مسلسل جاری ہے، اور ہماری جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش کے سلسلے میں آج ہم حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں 10,000 راشن کے کٹس کی تقسیم کے سلسلے میں ہماری جانب سے مقامی اراکین بلدیہ جو 7 ڈویژنز ہمارے پاس ہیں، ان 7 اراکین بلدیہ کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، اور وہاں پہ صدور معتمدین و سرگرم کارکنوں کے ساتھ اراکین بلدیہ یہ 10,000 راشن کے کٹس عوام میں تقسیم کریں گے، تاکہ عید کے موقع پر کسی گھر میں بھی کوئی بھی بھوکے نہ رہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے کل بھی قریب 5,000 راشن کے کٹس کی اجرائی یہاں سے ہم نے کی ہے، جس میں حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے لیے 2,000 کٹس یہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور وہاں کے اراکین بلدیہ، سرگرم کارکن، صدور و معتمدین اور متعلقہ رکن اسمبلی کی نگرانی میں وہ 2,000 کٹس کی تقسیم کا سلسلہ شاید آج سے شروع ہو چکا ہے، اور وہ ہوگا، اور مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی جانب سے ان کے کام میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں بھی تعاون کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے کی کڑی تھی جو کل بہادر پورے میں ہم بھیجے، اور پھر یاقوت پورے کے لیے بھی ہم نے قریب 1,000 کے قریب شاید وہاں پر بھی ہم نے روانہ کیے ہیں۔ احمد پاشا قادری صاحب آئے تھے، اور دوسرے اراکین بلدیہ بھی وہاں کے آئے تھے، ان کے ذریعے ہم نے یہاں سے اجرا کیا، اور پھر راجندر نگر کے لیے بھی ہم دیے ہیں، جو حسن نگر اور میر محمد صاحب کی پہاڑی اور 9 نمبر کشن باغ، یہ ان علاقوں میں تقسیم کے لیے بھی ہم نے وہاں پر بھی رحمت صاحب کو روانہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں، اور یہاں پر بھی بھیجے ہیں، اور پھر سکندرآباد کے علاقوں میں، اور مقطع مدار سکندرآباد، اور پھر کارخانہ بیگم پیٹ، ان علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم نے روانہ کیے، اور پھر بنجارہ ہل کے مختلف علاقوں میں بھی بھیجنے کے لیے ہم وہاں پر بھی کچھ راشن کے کٹس قریب 1,000 کے اوپر روانہ کیے ہیں۔ انشاءاللہ آج جناب وہاب صاحب، فہد بن عبداس صاحب، اور جناب حیدر صاحب، اور دوسرے سلیم صاحب، اور ہمارے ابتدائی بنجارہ ہل کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ آج رات میں انشاءاللہ اس کو بھی تقسیم کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا کئی مقامات پہ، تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ
1 लाख के करीब तैयारी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख के करीब अनाज की पैकेट्स की तकसीम भी इंशाअल्लाह आज कल परसों 1-2 दिन में शायद 1 लाख के तकसीम भी मुकम्मल हो जाएगी, हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह का फ़ज़ल करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे काम लिया है और हम काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने सिर्फ़ हल्क़े जात में असम्बली या बल्दिया हल्क़ों में हमने तक़सीम नहीं की, बल्कि जैसा आप जानते हैं कि दीनी मदारिसों को भी हमने अपना ताउन दिया है और कई माइग्रेंट वर्कर्स जो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड या महाराष्ट्र से आए हैं उनकी भी हमने मदद की है, ताउन किया है। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद हम हुफ़ाज़ जो मसाजिद के हैं उनका भी हमारी जानिब से ताउन करने का हमने ऐलान किया है, वो भी करेंगे। तो बहरहाल हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का फ़ज़ल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह ने हमसे काम लिया और ये समझकर हमने काम किया कि ये एक मौका है, इस मौके में जितना हो सकता है हमको नेकियां बटोरने का मौका मिलेगा, हमको बटोरना है। और हमने और मेरी टीम बिलखुसूस जनाब समद बिन अब्दास साहब, जनाब नसीर गयास साहब, जनाब फ़हाद बिन अब्दास साहब, जनाब वहाब साहब कॉरपोरेटर और जनाब सईद साहब और दूसरे मेरे साथ जो यहाँ पे हमारी टीम थी, हम सब ने यही सोचकर काम किया कि फिर ऐसा मौका नहीं आएगा नेकियां बटोरने का और अपनी आखिरत को संवारने का। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमसे काम लिया, हम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुझे एक ही बात याद आती है कि मैं बार बार आज से 9 साल पहले मुझ पर हादसा होने के बाद मुझे याद आता था कि नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। और हर दिन यही सोचता और यही फ़िक्र में रहता कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। जब ये इमारत बनी तो ये इमारत को देखकर मैं हर वक्त यही समझता रहा कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए हयात बख्शी। या फिर दवाखानों की तामीर हो, वैसी हॉस्पिटल की तामीर हो या असरा की तामीर हो, तो इन तामीरात, इन इमारतों को देखकर समझता था कि शायद ये काम है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। बहरहाल हर रोज़ महाराष्ट्र, बम्बई जब गया तो वहाँ पर भी सोचता था कि शायद ये काम है इसके लिए अल्लाह ने हयात दी। और आज 5 करोड़ से ज़ायद सरफे के ज़रिए भूखों का जो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है, भूखों तक अनाज पहुँचाने का, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक काम था जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात बख्शी है। तो मैं सारे उन लोगों का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज से 9 साल पहले मेरे हयात के लिए दुआएं की थीं, रोज़े रखे थे, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया था और अल्लाह से मेरी हयात के लिए दुआ मांगी थी। मैं क़र्ज़दार हूँ उन सब लोगों का और अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस क़र्ज़ को उतारने का नहीं, बल्कि कहूँगा कि इस क़र्ज़ को अदा करने का एक मौका दिया है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात से जितना मुमकिन है कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर एक हकीकत है कि इतना करने के बाद भी मैं कहूँगा कि हमने कम किया है और बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सके। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहे हैं, हमारी ज़ात से जितना मुमकिन है हम करेंगे। बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से और आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि अगर ये जो हमने काम किया है इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। दुआ करिए कि अल्लाह ये जो हमने काम किया है इस काम का अजर अज़ीम सालार मिल्लत अलैहि रहमा के और फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे ज़िम्मेदारान, सारे सूदुर मुतमदीन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह इन सारों को इसका अजर दे और इन सारों की ख़बर को
اللہ نور سے بھر دے اور